हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 7 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में यहाँ ये जो कर साथी इनिशिएटिव है, इसके साथ ही हम देखेंगे आईएनएस अरिदमन के बारे में, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में देखेंगे, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है, हम उसके बारे में देखेंगे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2026 के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे जो ग्लोबल मैटरनल डेथ्स हैं उस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the India Semiconductor Mission 2.0, consider the following statements. So यहाँ पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स। एंड सेकेंड, the mission aims to establish India as a hub for the domestic manufacture of semiconductor equipment. Third statement है, the design linked incentive scheme under ISM 2.0 is specifically restricted to government owned research entities. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0 उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ओन्ड रिसर्च एंटिटीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the India Semiconductor Mission 2.0 emphasizes strengthening the semiconductor talent pipeline in India, and one of the proposed measures include establishing industry-led research, design, and training centers in collaboration with the academic institutions and private semiconductor firms. So these centers aim to create a highly specialized workforce in areas such as chip design, fabrication processes, packaging, and semiconductor materials. So this approach aligns with India's broader strategy of integrating academia, industry, and government support to develop a skilled semiconductor ecosystem. So ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, it expands the scope of India's semiconductor strategy beyond chip fabrication by encouraging domestic manufacturing of semiconductor equipment, components, specialty chemicals, and materials. So building such upstream capabilities is important because the semiconductor industry relies on a complex supply chain that includes lithography systems, wafer fabrication tools, and high purity materials. So developing these capabilities domestically is intended to reduce import dependence and strengthen the technological self-reliance. साथ ही डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट ओन्ड रिसर्च एंटिटीज। इंस्टेड it support startups, domestic companies, MSMEs, and design firms engaged in the semiconductor design and intellectual property development. So ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रमोट इनोवेशन इन चिप डिजाइन विद इन इंडिया। शुरू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कर साथी। सो हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि कर साथी जो है उससे संबंधित यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
उनमें से कौन से करेक्ट हैं? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स एआई चैटबॉट। एंड सेकंड, it is aimed at simplifying compliance under the Income Tax Act 2025. और यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर कर साथ ही ये जो एआई चैटबॉट है इससे संबंधित यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, recently the income tax department launched a new website called Kar Sathi, and it is the income tax department's AI chatbot designed to serve as a virtual tax assistant available round the clock through the department's official website. So it is aimed at simplifying compliance under the Income Tax Act 2025, and it functions as a digital assistant integrated within the new income tax website. So इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है to address user inquiries, provide step-by-step guidance and streamline procedures such as filing returns. And it is integrated into the site to provide automated real-time response to taxpayer queries. सो आपने देखा कि जो कर साथी है इसका जो फीचर है दैट दिस टूल इज अवेलेबल 24/7 एंड कैन एक्सप्लेन प्रोसेसेस सच एज फिलिंग रिटर्न्स, अंडरस्टैंडिंग अपडेटेड प्रोविजंस एंड नेविगेटिंग फॉर्म्स. So it's positioned as one-stop solution for taxpayers, covering everything from understanding tax rules to walking you through return filling and resolving queries about direct tax compliance. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो कर साथी है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एआई चैटबॉट है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to INS Aridhaman, consider the following statements. सो यहाँ पर INS अरिधमन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज इंडियाज थर्ड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. Second, it is built under the Advanced Technology Vessel project. And third, it has displacement capacity of 10,000 tons. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है INS अरिंदमन से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि INS अरिधमन का जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है वो है 6,000 टन. आप देख सकते हैं. सो रिसेंटली India inducted its third nuclear powered ballistic missile submarine INS Aridhaman into the Indian Navy. So it is India's third indigenously built nuclear-powered ballistic missile submarine, and it is the second submarine in the Arihant class of submersible ship ballistic nuclear. So it is built under the Advanced Technology Vessel project to build nuclear submarines at the Shipbuilding Center in Vishakhapatnam. So it can displace 6,000 tons on the surface and 7,000 tons submerged, and it consists of 83 MW pressurized water reactors supplied by the Bhabha Atomic Research Center. इसके साथ ही आर्मामेंट्स की बात करें तो इट इज इक्विप्ड विद द 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स एंड इट इज डिजाइंड टू कैरी मोर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स देन INS अरिहंत एंड INS अरिघात.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state emerged as the overall champion in the inaugural edition of the Khelo India Tribal Games 2026 held in Raipur? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, रायपुर में आयोजित जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है, उसमें कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये स्टेट है कर्नाटका। आप देख सकते हैं, कर्नाटका was crowned the overall champion of the inaugural Khelo India Tribal Games 2026, which concluded in Raipur, Chhattisgarh. So Karnataka secured the top spot with 23 gold, 8 silver and 7 bronze medals, largely dominated by their performance in swimming and athletics. So Karnataka's Manikanta L was the most successful athlete of the games, winning 8 gold medals and 1 silver. Odisha finished second in the medals tally but was the only contingent to cross a half century of medals, winning a total of 57, जिनमें है 21 gold, 15 silver and 21 bronze. So the host state Chhattisgarh finished in the ninth position with 3 gold, 10 silver and 6 bronze medals. तो आप ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ये फर्स्ट एडिशन रहा है जिसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। और इसके पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3800 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आप ध्यान रखेंगे, इसमें मेडल्स टैली में जो टॉप 3 जो स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, उड़ीसा एंड झारखंड। और आपने देखा कि जो होस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, उसने फिनिश किया है 9th पोजीशन पर। ये जो ट्राइबल गेम्स हुए हैं इसमें जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स रहे हैं वो रहे हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the latest report from the Athletics Integrity Unit, which country has the highest number of suspended track and field athletes due to doping violations as of April 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार अप्रैल 2026 तक डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित ट्रैक और फील्ड एथलीटों की जो सबसे अधिक संख्या है वो किस देश में है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर केन्या। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो सबसे ज्यादा जो ऐसे एथलीट्स पाए गए हैं वो हैं इंडिया में। आप देख सकते हैं, India has topped the Athletics Integrity Unit's latest list of ineligible athletes, surpassing Kenya in the number of doping-related suspensions. So, as of April 1st, 2026, India has 148 suspended track and field athletes, the highest in the world, followed by Kenya and Russia. So, prominent Indian athletes on the list include national record holder Duti Chand, Parvesh Khan, and Dhanalakshmi Shekhar. The suspensions cover both doping violations and non-doping violations like tampering, evading test, or missing whereabouts. So the previous WADA report for the 2024 also placed India at the top with 260 athletes testing positive, representing a high positivity ratio of 3.6%.
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स इन 2017। और इसके रोल की बात करें तो इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट मैनेजेस ऑल डोपिंग एंड नॉन डोपिंग इंटीग्रिटी रिलेटेड मैटर्स फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स। साथ ही वाडा की बात करें, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको स्टैब्लिश किया गया 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा है और उसका रोल है द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द एंटी डोपिंग प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2026 टुक प्लेस इन विच सिटी। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 है उसका आयोजन किस शहर में हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बैंकॉक, शिलोंग या फिर गुवाहाटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है शिलोंग में। आप देख सकते हैं द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2026 इज बीइंग हेल्ड इन द शिलोंग मेघालय वेयर इंडियन बॉक्सर्स हैव सिक्योर्ड मल्टीपल मेडल्स। So India assured 3 medals on the fifth day of the tournament as Nikhat Jareen, Priya and Preeti Pawar entered the semi-finals. सो एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन की बात करें तो ये एक कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ अमेचर बॉक्सिंग इन एशिया। It organizes the Asian Boxing Championships for both elite men and women. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not among the 5 countries that account for over a third of global maternal deaths according to the recent Lescent study? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में लेसेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 5 देशों में शामिल नहीं है जिनमें वैश्विक मातृ मृत्यु दर 1/3 से अधिक है या उनका हिस्सा 1/3 से अधिक होता है। आपके ऑप्शन हैं इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया या फिर इथोपिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है बांग्लादेश। आप ध्यान रखेंगे जो ग्लोबल मैटरनल डेथ्स है उसके लिए जो टॉप 5 कंट्रीज है उनमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, इंडिया है। आप यहां देख सकते हैं A new Lancet analysis finds that 36% of the global maternal deaths are concentrated in just 5 countries. Bangladesh is not among the 5 countries identified in the Lancet analysis as accounting for over a third of the global maternal deaths. So the study explicitly names Nigeria, India, Ethiopia, Pakistan, and Cameroon as the 5 nations that collectively account for 36% of the maternal deaths worldwide. So the data highlights that maternal mortality remains heavily concentrated in specific regions, primarily sub-Saharan Africa and South Asia. Nigeria and India represent the highest burdens globally, recording 32,900 and 24,700 maternal deaths, respectively, in the year 2023.
एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ women हु डाई फ्रॉम अ मैटरनल कॉज पर 1 लाख लाइव बर्थ्स. The United Nations mandated Sustainable Development Goal target is to reduce the global MMR to fewer than 70 by the year 2030. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.